Hello everyone, a very good morning to all. So I'm Dr. Anubha Gupta and along with my colleague Ira Makkar, I welcome you all to this workshop on Navratri Detox. So guys, this is a 2-day workshop on Navratri Detox. We have already shared with you the detailed plan of this 2-day workshop. So let me just tell something about myself. I am a certified Ayurvedic health and wellness coach. I'm also a health food influencer and a food blogger and a self-trained chef. So I started with my healthy recipes journey last year. And the reason for starting was that I have too many people in my family who are suffering from lifestyle disorders and like diabetes, thyroid, PCOS and all. So I thought that why not to create few recipes where we can just give them few options which are healthy and which are suitable for them. So that is how I started with this venture of mine, which is Healthify You. And I am willing to take it forward because I wish to change the lifestyle of the people by giving them the Ayurvedic dietary guidelines or consultancy, as well as introducing them to many healthy versions of the existing recipes. I'm also one of the top 10 winners of Maggie National Contest, which was held between January and March 2021. So this is all about myself. Now I would request my colleague Ira Makkarji to just talk something about herself. Just a minute, guys. Yeah, over to you, Ira. Thank you, Dr. Anubha. So it's a pleasure to be here connecting with so many beautiful souls. Hari Om, healthy morning. So as Dr. Anubha said, I will be another guide for you during this detox journey. I myself, if you say, I'm a yoga practitioner, a yoga trainer and instructor. I have been connected with Patanjali Yogpith Haridwar since last few years, and I'm teaching and taking online yoga classes and offline yoga classes. Moreover, I myself an Ayurvedic nutritionist and dietitian, and I'm practicing the same as a wellness coach, following the Ayurvedic principles of life in Chandigarh since last few years. So a very warm welcome to all, and let's start with this detox program with Dr. Anubha explaining you the Ayurvedic concepts of these detoxification. So over to Dr. Anubha. Thank you so much, Ira. So guys, without wasting any further time, let me share my screen with you all. So I hope this is visible. Iraji, can you confirm? Is it visible? Yeah, you're very clear. Okay. Yeah. So guys, as you can see on the screen, this is the first slide which says that you are what you digest. Okay. So normally whenever we are talking about this proverb, we take it as we are what we eat. But whenever it is about Ayurveda, so in Ayurveda, we are saying that we are what we digest. Okay. Now, why this is so? Because in case of Ayurveda, digestion or digestive fire is the integral part of the whole body activities or bodily processes. जब हम आयुर्वेदा में बात करते हैं तो हम डाइजेशन को प्राइम पोजीशन पे रखते हैं. Now I will tell you in my succeeding slides that why this is so. Okay. So this is about the second slide, which is Agni or digestive fire. Now, if you can see from the second line, rather the last line which is written, that enzymes and hydrochloric acid are collectively known as digestive fire. So guys, modern nutrition mein we all are aware of the enzymes that are acting on the food to break it down into smaller substances. We have hydrochloric acid in the stomach जो कि help करता है food को digestion के लिए, क्योंकि वो उनको और smaller substances में pieces में break करता है. Similarly,
द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द माउथ, क्योंकि वहां पर हमारा सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा एक्सक्रीट करता है, जिसमें एंजाइम्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड का जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इट स्टार्ट्स राइट अवे फ्रॉम द बकल कैविटी और द माउथ. ओके, सो व्हेन ग्रेजुअली इट comes down through esophagus to our stomach, there is also the presence of enzymes which are basically or collectively known as digestive fire. तो अब आप ये देखिए कि मॉडर्न न्यूट्रिशन में, जस्ट कनेक्ट माय बैटरी, मॉडर्न न्यूट्रिशन में जो कॉन्सेप्ट हमारा 5000 ईयर्स पहले हमारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था, वो मॉडर्न न्यूट्रिशन में या मॉडर्न साइंस में अब आया है. ओके, सो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैं बात करूं या मैं अगर एंजाइम्स की बात करूं, तो ये चीजें यहाँ पे अब दी जा रही हैं, लेकिन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स have invented this concept some 5000 years back, and they named it as Agni or digestive fire. So now let's see what it is all about. Now in Ayurveda we talk about these 5 elements which are present in the universe. They are the air, space, fire, water, earth. इनको आपने सुना होगा पंच महाभूता भी बोलते हैं. तो इनके कलेक्शन से हमारे तीनों दोषास या बायो एनर्जीज बने हैं. तो ये डिटेल में इरा जी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट सेशन विच वी विल हैव टुमारो. तो वो बताएंगे आपको कि ये तीनों दोषास कैसे बनते हैं और इनमें कैसे कैसे हम इनमें एनर्जीज का यूज करते हैं बॉडी के लिए. बट यहाँ पर मैं थोड़ा अपने डाइजेशन प्रोसेस को समझाने के लिए थोड़ा सा के साथ डिस्कस करूंगी. एज यू कैन सी, वाता इज कंप्राइज्ड, इट कंप्राइजेस ऑफ एयर एंड स्पेस. Rather, it is better to say that it is made of air and space. So air का मतलब है वात या वायु. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पित्त, ये हो गई वात की बात. पित्त एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इट इज बेसिकली formed from fire and water. Okay, so पित्त एनर्जी जो है it is in itself the fire or the agni or the digestive fire. तो नीचे भी मैंने लिखा हुआ है कि पित्त का मतलब अपने आप में ही पित्त क्या रिप्रेजेंट करता है, डाइजेस्टिव फायर को. लेकिन उस डाइजेस्टिव फायर को जिंदा रखने के लिए, उसको अलाइव रखने के लिए what we need is the Vata energy, or which is in modern times we can call it as oxygen. Okay, so oxygen की जरूरत होती है उस फायर को अलाइव रखने में, जिसको कि हम पुराने आयुर्वेदिक सिस्टम में, जो कि कितने 5000 साल पहले ही इन्वेंट कर लिया गया था, उसको हम क्या बोलते हैं, वात या वायु. उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी जो बायो एनर्जी है, दैट इज कफ एनर्जी, जिसका मतलब है वाटर और अर्थ को वो रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो वाटर और अर्थ को जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सिंपली मतलब ये है कि वाटर इज कंसिडर्ड टू बी अ लुब्रिकेंट. द लुब्रिकेंट which is in the form of say the enzymes, the blood, the nutrients which are moving all around our body. ठीक है, तो वाटर या लुब्रिकेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है इन केस ऑफ मेकिंग द डाइजेस्टिव प्रोसेस स्मूदर. तो तीनों जो दोषास हैं या एनर्जीज हैं, इनका अपना अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. सो इन तीनों के बारे में, जैसा कि मैंने कहा, इरा जी बताएंगी आपको कल डिटेल में कि ये पंच महाभूता से कैसे ये दोषास बने हैं और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड, हियर द स्लाइड रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन अग्नि एंड अमा. नाउ अग्नि इज बेसिकली समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी हॉट. वी ऑल नो दैट अग्नि का मतलब क्या होता है, बहुत गर्म, शार्प, लाइट, ड्राई. So all these are the characteristics of Agni. ठीक है, तो अग्नि बेसिकली मीन्स जिसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो. अब यहाँ पर अमा का क्या मतलब है, डाइजेस्टिव फायर का मतलब अग्नि है. ऑल राइट, अग्नि के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हॉट, शार्प, लाइट, ड्राई. तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स वाला खाना खाएंगे, फूड इंजेस्ट करेंगे, जो कि हम अपने माउथ से इंजेशन जब करते हैं, तो ऐसा जब हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, दिस अग्नि विल बी इग्नाइटेड फॉर एवर. ये हमेशा जलती रहेगी,
इग्नाइटेड रहेगी. बट अगर हम इसके ऑपोजिट कैरेक्टर्स वाला खाना खाएंगे, लाइक स्टिकी, हेवी, वेट, स्लाइमी, कोल्ड, इस तरह का जब हम खाना खाएंगे, सो दिस अग्नि विल बी नॉट स्ट्रॉन्ग, इट विल बिकम वीकर एंड वीकर. वो अग्नि कम होती जाएगी, और जब अग्नि कम हो जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इट विल लीड इनटू द क्रिएशन ऑफ अमा और टॉक्सिन्स. क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने आपको लाइव इस स्लाइड में क्या दिखाया है, इसको मैंने पेट की डाइजेस्टिव फायर को किसके साथ कोरिलेट किया है? जो हम कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए जो हम फायर का या अग्नि का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं. सो हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज कि जो अग्नि की जरूरत खाने को बनाने के लिए है, अगर हमारे पास प्रॉपर फ्लेम नहीं है, प्रॉपर अग्नि नहीं है, प्रॉपर हीट नहीं है, तो हमारा खाना पूरी तरह से पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर हमारे स्टमक में प्रॉपर डाइजेस्टिव फायर नहीं है, तो जो भी हम खाएंगे वो भी सड़ेगा, कच्चा रह जाएगा, जैसे कि उसका कोरिलेशन किया है. सो वो सड़ेगा, और सड़ता हुआ खाना विच इज स्टेल फूड विल बी known as the ama or the toxins which we can see here. So you can simply see. तो एक तो चीज क्या है कि जो हमारी अग्नि है उसको हमेशा इग्नाइटेड रखना है, उसको रिकिंडल करते रहना है. और दूसरा, हम जो खाना खाएं, द फूड दैट वी आर having, we are ingesting, that should be of the same qualities of agni, like hot, sharp, light, dry and subtle. अगर इसके opposite हम खाएंगे, which is sticky, heavy, wet, slimy and cold, तो क्या होगा? ama या toxins build होंगे. Now in this slide you can very well see the ama accumulation and how it happens. So as I have already shared with you, when the digestive fire inside our body, inside our stomach, inside the basically digestive system की पूरे, जब अग्नि जो है strong है, तो ama definitely कम होगी, less toxins होंगे. और अगर वो अग्नि हमारी weak है, तो toxins क्या होंगे? ज्यादा होंगे. ठीक है. तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अग्नि जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, टॉक्सिन्स उतने कम होंगे, और अग्नि जितनी ज्यादा वीक होगी, टॉक्सिन्स उतने ही ज्यादा होंगे. सो हाउ दिस टॉक्सिनेशन और टॉक्सिफिकेशन और अमा बिल्डिंग इज डन बाय अस, हम कैसे इसको करते हैं, मतलब हम खुद अपने, वो जैसे कहते हैं ना पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो हम खुद ऐसा काम करते हैं. हम जब हमारी डाइजेस्टिव फायर पीक पे होती है, या जैसे हमने खाना खाने से पहले हम पानी पी लेते हैं, उससे क्या होता है? वो डाइजेस्टिव फायर हमारी कम हो जाती है. तो डेफिनेटली जब व्हेन द डाइजेस्टिव फायर इज लो, द फूड दैट यू आर टेकिंग इन will not be properly digested and it will lead to ama accumulation. All right. Similarly, जो खाना, ये तो खाना खाने से पहले की बात हो गई. खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं? हम तुरंत पानी पी लेते हैं. तो जो हमारी डाइजेस्टिव फायर अभी खाए हुए खाने को बर्न कर रही है, उसको कन्वर्ट कर रही है थ्रू केमिकल रिएक्शंस ऑफ use of, by using enzymes, by using various types of pancreatic juices which are being secreted by liver and just a second, yeah, sorry, so which are being secreted by liver, the pancreas and even a few of the intestinal juices. तो जो पूरा digestion, क्योंकि final जो digestion है that is being done in small intestine, so वो पूरा जो process है digestion का, जब तक वो complete हो रहा है, क्योंकि 3 से 4 घंटे लगते हैं किसी भी खाए हुए खाने को properly digest होने में, तो वो digestion का process digestive fire के through होगा ना. मैंने आपको बताया digestive fire is actually a collective name for all the enzymes including hydrochloric acid etc, right? So that digestive fire is already sharp, but हमने खाना खाया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने उसके ऊपर पानी पी लिया, तो जब तक वो प्रोसेस पूरा करती डाइजेस्टिव फायर, उससे पहले ही हमने क्या किया? हमने पानी पी लिया और उस डाइजेस्टिव फायर को ठंडा कर दिया. तो डेफिनेट सी बात है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा बॉडी में टॉक्सिन्स का होना बहुत ही नेचुरल. ऑल राइट. सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट. एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, फूड इज बीइंग ईटन
and up to more than the capacity the stomach can hold. तो अगर आप अपने स्टमक की कैपेसिटी से ज्यादा फूड को खा लेते हो तो क्या होगा, उसमें भी अमाक की बिल्डिंग होगी, क्योंकि ये देखिए छोटी सी आपकी डाइजेस्टिव फायर यहाँ दिख रही है. तो डाइजेस्टिव फायर को पूरी जगह तो मिल नहीं रही अपना काम करने के लिए. दूसरी चीज, आप जैसे कहते हैं आयुर्वेदा में जितनी भूख है उसका 50% खाना खाना चाहिए, 25% शुड बी लेफ्ट फॉर लिक्विड्स and the rest 25% should be left for vat or air, so that the air can move around and it can keep the digestive fire alive. all right, जो मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया, तो वात का पूरा मूवमेंट होगा, डाइजेस्टिव फायर को वो हेल्प करेगा अपना काम करने में. और डाइजेस्टिव फायर का काम क्या है, ऑक्सीजन को लेके, मॉडर्न के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ऑक्सीजन को लेकर वो फूड को बर्न करता है, कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, बेसिकली जो कन्वर्टेड वाला फूड है दैट गोज इनटू ब्लड थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, एंड देन gradually it goes to each part of body or to the cells through the blood. तो जो पूरा का पूरा digestion है that will be done only if the digestive fire is strong. Moving on to the next slide. Now, how would you know that your body has some toxins or ama? So for that there are few symptoms. Symptoms क्या है, fatigue, fat gain, obesity, bloating, indigestion, morning lethargy, constipation, जगह जगह unnecessary pains and aches. तो अगर आपके joints पेन कर रहे हैं या आपका कहीं इधर दर्द कहीं उधर दर्द, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है कि आपके हर एक बॉडी सेल में जो है ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा है, and there is the ama which is accumulating. So what you need to do is you have to get rid of that ama first, then only you will be free from all these problems. Or since Ayurveda talks about, it considers a holistic approach of detoxification, which is not only for the body but also for the mind and soul. So that is why if you are healthy within, उसका मतलब क्या है, अंदर पेट भी अच्छा है, मन भी अच्छा है और आत्मा भी अच्छी है, ये आयुर्वेदा मान के चलता है. तो अगर आपको लगता है कि इमोशनल फ्रंट पे यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, you are getting very aggressive very soon, you are getting irritability or pessimism, lack of motivation, all these are clear symptoms of ama in your body. Now this is very important topic because it is about how to eliminate these amas or toxins. Okay, so it's सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ सिम्टम्स आपने देख लिए कि हाँ मेरे बॉडी में टॉक्सिन्स हो सकते हैं. अब क्या जरूरत है, इस टॉक्सिन को कैसे जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ योर बॉडी. हाउ टू डू इट? फर्स्ट इज निदान परिवर्जन, अवॉइडिंग द कॉजेस. तो सबसे पहले जैसे हम आयुर्वेद में प्रिंसिपल क्या फॉलो करते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर. ओके, तो आयुर्वेद का सबसे पहला वो क्या है कि प्रिवेंशन हमेशा पहले होना चाहिए, क्योर बाद में होना चाहिए, जबकि मॉडर्न साइंस में उल्टा है. जो हमारा मॉडर्न साइंस है, मेडिकल साइंस, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा तब पॉसिबल है इफ यू आर ईटिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, दिनचर्या एंड ऋतुचर्या. सो प्रकृति आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज इरा जी विल टेक केयर ऑफ दैट इन दी टुमारो सेशन. दिनचर्या का मैं बताती हूँ. तो प्रकृति के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, मतलब बेसिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग खाना चाहिए. उसको करने के लिए देयर आर फ्यू वेज. There is a questionnaire which has to be filled, and obviously we as Ayurvedic practitioners we do it for our clients before recommending them a particular diet. तो वो इराजी will tell you about that tomorrow. दिनचर्या का मतलब है आयुर्वेदा में 24 hours are being divided into 6 kals. So these 6 kals are the कफ काल्स, 2 कफ काल, 2 पित्त काल, 2 वात काल. ठीक है, तो सबसे पहले मॉर्निंग से स्टार्ट होता है कफ काल, विच इज 6 to 10 का टाइम इज कफ काल, 10 to 2 इज पित्त काल, 2 to 4 इज वात काल, सॉरी 2 to 6 इज वात काल, एंड 6 to 10 इज अगेन कफा काल. तो आयुर्वेदा में व्हाट वी अज्यूम इज दैट पित्त काल इज द टाइम पीरियड, यानी कि 10 बजे सुबह से लेके 2 बजे दोपहर तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज
very important period, and that is the period when you should be consuming the heaviest meal of the day, heaviest and richest. तो जो हमारी कहावत है ना कि ब्रेकफास्ट तो राजाओं जैसा करो और लंच करो किसान या सोल्जर्स जैसा और डिनर करो भिखारी जैसा, तो उसमें एक्चुअली थोड़ी सी गलती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट भिखारियों जैसा, ब्रेकफास्ट राजा जैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कौन सा काल है, कफ काल है। हम क्या कहते हैं, सुबह 8 साढ़े 8 तक मैक्सिमम 9 बजे तक यू शुड हैव योर ब्रेकफास्ट, दैट इज द टाइम ऑफ कफ काल। सो कफ काल, योर डाइजेस्टिव फायर इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर जो कालों में है, काल में है, वो सनराइज के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे जैसे सन अपने पीक पर चढ़ता है वैसे वैसे आयुर्वेद में मानते हैं कि डाइजेस्टिव फायर keeps growing. All right, so digestive fire as along with sun is the highest during this daytime, which is 10 to 12. So this should be the time when you can take your heaviest and richest calorie dense meal of the day. और रात में डेफिनेटली आपको भिखारी से भी कम खाना चाहिए, मैं तो कहूंगी। भिखारी तो फिर भी रोटी खा लेता है, आपको रोटी वगैरह कुछ नहीं खानी चाहिए। ऑब्वियसली प्रकृति के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, बट स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेट लॉस और डिटॉक्सिफिकेशन, you should be having single pot meals which are freshly cooked, which are warm, because that time period is kafka. Then we have ऋतुचर्या, which is seasonal regime. ऋतुचर्या का मतलब क्या है, जैसे कि हम कहते हैं कि मॉनसून सीजन में हम जो है खाएंगे पकौड़े विद चाय, बिकॉज मॉनसून में तो बारिश हो रही है तो हम पकौड़े खाएंगे। बट एक्चुअली अगर आप देखिए तो मॉनसून सीजन इज द टाइम वेयर देयर इज मॉइस्चर इन द एयर। सो आयुर्वेद कहता है कि अगर मॉइस्चर है तो ड्राई खाओ, अगर ड्राई है तो मॉइस्चर खाओ, यानी कि ऑपोजिट। So that is why you should not be having very heavy or fried kind of things during monsoon. You should be having soups which are little warmer, क्योंकि monsoon में थोड़ा सा ठंडापन भी होता है ह्यूमिडिटी के साथ, तो उस तरह से हमें देखना है। विंटर्स आ गए, ठंड बढ़ गई, तो हमें क्या खाना चाहिए, गर्म चीजें खानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि समर्स में हमें बिल्कुल बर्फ से भरी हुई चीजें खानी चाहिए, which most of us do, because Ayurveda never recommends the use of ice or things like that in the diet. Even if the people are pitta prakriti people और जिनके अंदर heat ज्यादा है, उनको भी आयुर्वेदा ये कहता है कि आप normal room temperature की चीजें खाओ और ऐसी चीजें खाओ which have cold potency, यानी कि जिनकी तासीर ठंडी है, rather than having ice or something which is cold drink or ice creams. So Ayurveda totally prevents that. Then you should be eating only after your previous meal is digested. So I have already covered this. Eat small, easy to digest meals. Definitely this will vary according to your prakriti or body constitution. वो हीरा जी कल बताएंगी. Then do not eat refrigerated or cold or stale foods. ठीक है, सो आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जो कि रखा हुआ है और या जो कि स्टेल है। तो इस तरह का खाना अगर आप खा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है उसमें। ठीक है, do not eat when you are angry, depressed or emotionally stable. So as I already shared with you, Ayurveda में detoxification is not only for the body but for the mind and the soul also. So जब आप emotionally stable नहीं हो, आप mentally low feel कर रहे हो, depressed हो, or you are into aggression, then definitely you should not have the food that time, because obviously वो उससे आपको कुछ nutrition तो नहीं मिलेगा, rather it will convert into ama. So better is not to have anything which is solid. Just go on liquid diet if you are emotionally unstable. Next technique is ama pachan, which is known as digesting ama. So जैसा कि मैंने बताया कि जो ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हम अमा को एक्यूमुलेट ना होने दें। ठीक है, लेकिन अगर ऑलरेडी हमने इतना जो खाया हुआ है अंदर वो ऑलरेडी accumulated है in the form of ama, so what we should do, we should just try to get rid of it, just मतलब उसको बिल्कुल just throw it out टाइप की फीलिंग रखनी चाहिए। उसके लिए हमें कुछ कुछ ऐसा करना चाहिए, थोड़ा सा तो हम डाइजेस्ट करें और जो अनडाइजेस्टेड बिल्कुल ही बेकार है उसको हम निकाल दें। तो उसके लिए what we should do,
We should keep drinking lukewarm water throughout the day. And obviously there are few herbs and spices. As you know that our like India is very, very rich. I would say a very, very rich patronage. It is having that patronage of herbs and spices. So हमारे जो herbs and spices हैं, they are all are so rich and they have so many benefits जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, जड़ी बूटियां जिनको बोलते हैं. तो वो सारी चीजें हमें यूज करनी चाहिए. वो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे, कुछ रेसिपीज भी शेयर करेंगे ड्यूरिंग योर डाइट प्लान. Then there is Agni Deepan, which is basically reigniting the digestive fire. So as I've already shared that digestive fire को ignited रखेंगे तभी हमारा next आने वाला meal properly digest होगा. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? मील से पहले, अभी तक आप ये सुनते आए होंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए. मुझे याद है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड वी यूज्ड टू जस्ट ड्रिंक और सिप फ्यू I would say 1 or 2 glasses of water while having meals. खाना खाते खाते भी हम लोग पी जाते थे. उस टाइम नहीं इतना कुछ होता था, लेकिन उसके बाद कॉन्सेप्ट आया that you should not immediately have the water after meals. But यहाँ पर एक चीज और है, immediately तो आपको नहीं ही लेना है. Before meals भी आपको पानी ठंडा तो बिल्कुल नहीं लेना है. And better is to take any herbal decoction before your meals in order to keep your agni or digestive fire ignited. That is why whenever we give our meal plans, जिनका बहुत ज्यादा slow digestion होता है, diet plans जब हम देते हैं तो अपने clients को, तो हम ऐसे ऐसे decoctions देते हैं जिनकी वजह से उन खाने से पहले उनकी जो ये अग्नि है ना, ये rekindle हो जाए, reignite हो जाए. Okay. Then स्त्रोतोशोधन और cleansing channels. स्त्रोतोशोधन और क्लिंजिंग चैनल्स का मतलब है अब ये सारी टेक्निक्स, ऊपर वाली 3 टेक्निक्स यूज करके हमने क्या किया, हमने अपने टॉक्सिन्स को थोड़ा सा मूव कराया. ठीक है, मूव कराना इन द सेंस हमने उनको मतलब मेल्ट कराया, डिसॉल्व कराने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ फ्यू हर्ब्स एंड स्पाइसेस एंड ऑल दीज थिंग्स. नाउ इट इज द हाई टाइम वी शुड गेट रिड ऑफ देम. हमें उनको बिल्कुल निकाल के फेंकना है बॉडी से. उसके लिए 3 मेथड्स हैं, फीसेस के थ्रू, यूरिन के थ्रू और स्वेटिंग के थ्रू ही. आपको पता ही है सबको कि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से रिमूव हो सकते हैं. स्वेटिंग के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव सम वर्कआउट और एक्सरसाइजेस, स्पेशली इन द मॉर्निंग इन द सन इफ पॉसिबल, जो कि हमारा चाहे योगा हो, चाहे एरोबिक्स हो, व्हाटएवर सूट्स यू अकॉर्डिंग टू योर ओन बॉडी एंड एवरीथिंग, आपको वो करनी चाहिए जिससे कि आपका थोड़ा स्वेटिंग हो. और ऑब्वियसली जब स्वेटिंग होगी तो टॉक्सिन्स विल रिलीज. Similarly, for more urination, definitely we all know that we should be keeping our body well hydrated. पानी खूब पीना चाहिए और जहां तक हो सके lukewarm water throughout the day is recommended to all. Not for pitta people during summers, but बाकी टाइम में even pitta people can also have, because I am also a pitta type. मैं बिल्कुल रूम टेम्परेचर का भी पानी हार्डली ही पीती हूँ. सो दैट इज मतलब आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट वाटर. एंड देन फीसेस वगैरह को स्मूदन अप करने के लिए either we can go for trifla during bedtime, or we can even have the warm milk with a spoon of ghee, so that हम उसको पी के और हम नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा एलिमिनेशन प्रॉपर हो जाए. बिकॉज देखिए अगर कॉन्स्टिपेशन है आपको, सो दैट इज अ क्लियर इंडिकेटर दैट यू हैव द अमा एक्यूमुलेशन इन योर बॉडी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पंचकर्मा टेक्निक. पंचकर्मा टेक्निक में 5 चीजें होती हैं जो आयुर्वेद में कराई जाती हैं, और ऑब्वियसली वो थोड़ा ऑथोराइज्ड सेंटर्स जो होते हैं उन पे ही करना बेटर होता है. लेकिन कुछ तो हम अपने घर पे कर सकते हैं, स्पेशली थिंग्स लाइक ऑयल पुलिंग. ऑयल पुलिंग का मतलब होता है दैट वी विल just have 1 tablespoon of say coconut oil or sesame oil in our mouth, and we have to swish it around. तो 2 तरीके होते हैं, गंडूश और कवल. तो जो गंडूश है उसमें हम भर के रख लेते हैं, कवल में we swish it. तो ऐसे ऐसे करना है so that जो है हमारा जितना भी मुंह का टॉक्सिन्स है वो while we are brushing our teeth in the morning
first thing in the morning, then it comes out. And उसी के साथ what we should do is scraping of tongue is also very very important. क्योंकि आपने अगर सुना होगा तो पहले के डॉक्टर्स क्या होता था, टंग को चेक करते थे. So if there is any white coating or something on your tongue, it simply shows that there are toxins or there is excess of kapha in your body. Okay, so that is how, if you are scraping your tongue regularly, it will not only enhance your obviously you will get rid of toxins from the mouth. It will give a good I would say it is a kind of care routine for your teeth and for your tongue, etc. And also it will enhance your taste buds. आपके टेस्ट बड्स भी अच्छे होंगे और डाइजेशन तो डेफिनेटली अच्छा होगा ही, बिकॉज वी ऑल नो दैट माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन वेयर इवन डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स. तो सलाइवरी अमाइलेस एंड ऑल दीज थिंग्स वर्क टंग और टीथ की हेल्प से हम फूड को च्यू करते हैं. तो कहीं ना कहीं मुंह को भी फ्रेश रखना, माउथ को, बकल कैविटी को फ्रेश रखना भी बहुत जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑयल पुलिंग एंड टंग स्क्रैपिंग के अलावा जो अभ्यंगा होता है, जैसे होल बॉडी मसाज, इससे हमारे लिम्फ ग्लैंड्स या पूरा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होता है. एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, स्वेटिंग के थ्रू टॉक्सिन्स निकलेंगे. देन वी हैव आल्सो उद्वर्तन इन आयुर्वेदा, जिसका मतलब है कि कुछ हम उपटन वगैरह जैसे बेसिकली उस तरह का कुछ लगाकर स्क्रैपिंग करें अपनी बॉडी की. तो दीज आर फ्यू ऑफ द टेक्निक्स. और शिरोधारा आपने सुना होगा, जिसमें ऑयल को पोर करते हैं फोरहेड पे. So these are few techniques which can help you to eliminate toxins from your body. And definitely you should be consuming fresh fruits, vegetables and herbal teas throughout, so that you may get rid of the toxins. Okay guys, so this is all from my side. And I am also a diet consultant, the Ayurvedic diet consultant, as I told you, the healthy recipes chef. So I have my own website also. Would request you all to just subscribe to my website to know much more about Ayurvedic recipes, Ayurvedic related blogs, and obviously many more recipes like gluten-free, vegan, millet recipes. So I have so many categories on my website. And then I am also present on Instagram with the name of Healthify You, because I have told you initially that it is my venture. And a YouTube channel is also there, Facebook page is also there. So all are open for people, like-minded people like you, who are interested in transforming their lifestyle, or they want to improve their lifestyle rather. Because this is not a one-day task. Workshop though is fine, Navratri detox is also fine, but until and unless you inculcate this in your daily lifestyle, it is not going to work. Because हम लोग अपने clients को भी यही बोलते हैं. I hope Ira will also be like, she would also agree with me on this, that lifestyle को बदलना is not a one day task. जो आप इतने सालों से करते आए हो, उसको 1 month या 2 months में we can't change. But definitely जैसे जैसे धीरे धीरे आप उस चीज को adopt करते चलोगे ना, तो आपके अपने आप उसके आपको एक तो results दिखेंगे. तो you will be glad to see कि people who are taking diet from us, they are many of you are already here, so they are also feeling much more energetic than before. किसी की एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई, किसी की कॉन्स्टिपेशन की, किसी के शुगर लेवल्स कम हो रही हैं, किसी के थायराइड के मेडिसिन कम हो रहे हैं. सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ आयुर्वेदिक डाइट, विच इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. बिकॉज वो नाम के लिए आयुर्वेदिक है, लेकिन वो है एक्चुअली बैक टू रूट्स वाली डाइट. जो पुराने जमाने में जिस तरह से खाते पीते थे, वही चीज अडॉप्ट करनी है आगे आने वाले दिनों में, ताकि हम कोरोना जैसी तो मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली नॉट इन एनीबॉडीज कंट्रोल, बट यस, you can definitely be able, you will be able to just fight with all the rigor and every thing you have inside. उसके साथ आप अच्छे से लड़ पाओगे. तो एटलीस्ट अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना पाओगे इफ यू आर ईटिंग हेल्दी एंड इफ यू डोंट हैव एनी टॉक्सिन्स इन योर बॉडी. So detoxification is for that purpose only. Okay, so thank you so much. I would just hand over to Ira. She would be showing or demonstrating few of the
yoga, pranayams and kriyas to you. Okay, over to you, Ira.